Hello everyone, welcome to Higher Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In the last video, we discussed about direction cosines, and in this video, we will have introduction of direction ratios. तो direction ratios को समझते हैं, इनका DCs के साथ direction cosines के साथ link समझते हैं, और किस तरह से चीजें चलती हैं वो हम एक बार देखते हैं. So what are direction ratios? These are three real numbers A, B, C. These are said to be direction ratios or direction numbers of a line if A ratio B ratio C is equal to L ratio M ratio N, where L M N ये क्या है? These are the direction cosines of the line. अगर हमारे पास कोई तीन नंबर्स हैं जिनकी रेशियो सेम आ रही है in the ratio of direction cosines, then they will be the same as the direction ratio. तो उनको हम direction ratios बोल सकते हैं. And there are infinite number of direction ratios of a given line. Direction cosines सिर्फ एक यूनिक होता है, but direction ratios can be infinite. So the direction cosines of a line are proportional to ABC. ये दोनों एक दूसरे के proportional होते हैं. In the short, तो यहां पे कुछ notes हैं. If L, M, N are DCs of a line, then for any non-zero real number, lambda L, lambda M, lambda N, ये क्या हो जाएंगे? These will be the direction ratios. तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली है non-zero real numbers, क्योंकि अगर भी हमने यहाँ पे लैम्डा को जीरो पुट कर दिया, यू विल गेट 0 0 0. तो यहाँ पे DCs जो हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीआर्स आपकी हमेशा ही जीरो आ जाएंगी. तो डीआर्स जो होंगी वो डीसीज को किसी लैम्डा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी, एंड दिस लैम्डा कैन अटेन एनी रियल वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, बट द ओनली कंडीशन इज दैट इट कांट बी जीरो. अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, अगर इसको भी आप किसी नॉन जीरो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट अनदर डायरेक्शन रेशियोज. जैसे आपके पास डायरेक्शन रेशियोज लेट्स से 1 2 3 हैं, तो इसको आप लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट 2 4 6. इस डायरेक्शन रेशियो को फिर से आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 6 12 18. सो दीज आर ऑल द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेम लाइन. डजंट मैटर. तो डायरेक्शन रेशियो कैन कीप चेंजिंग फॉर द सेम लाइन. Okay, moving on. If A, B, C are the DRs of a line, then the DCs, the direction cosines will be given by A upon root A square plus B square plus C square, B upon root A square plus B square plus C square, C upon root A square plus B square plus C square. ये चीज हम देख चुके हैं पहले भी. अगर आपको याद हो, डायरेक्शन कोसाइंस का जब हमने वीडियो देखा था, in that we discussed if this is the point x comma y comma z, let's say in this case this point is let's say A B C, एंड ये पॉइंट यहाँ पे 0 0 0 है. हमें पता है कि इफ दिस एंगल विच इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस इज अल्फा, देन a अपॉन this r, which is basically root a square plus b square plus c square in this case, which is the distance between these 2 points, this a upon r will be equal to cos alpha, and which will be known as the direction cosine. And यहाँ पे इसका प्रूफ भी है, ठीक है, इसको प्रूफ भी मैंने करके बताया यहाँ पे. So A ratio B ratio C, this is equal to L ratio M ratio N, और हमें पता है कि A जो है this will be some proportion of the direction cosine, B will be direction cosine of along the y axis, उसका कुछ proportion में होगा, and C direction cosine along the z axis के proportion में होगा. तो इन सबको मैंने KL KM KN पुट कर दिया, बट हमें पता है कि L square plus M square plus N square 1 है. तो इनको डिवाइड करके जब देखा तो L की वैल्यू आ गई A by K, M की वैल्यू आ गई B by K, N की वैल्यू C by K. So we get A square plus B square plus C square upon K square is equal to 1. यहाँ से we can find the value of K, which is root A square plus B square plus C square, और प्लस माइनस में आएगी. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A B C, दिस कैन बी गिवन बाय A by K, B by K, C by K. तो K की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वापस. So this is proof how we can interrelate direction ratios and direction cosines. Moving on, let's say we have a line which is joining 2 points x1 y1 and x2 y2, x1 y1 z1 and x2 y2 z2. This is 3D, तो यहाँ पे z भी आएगा. अब इस लाइन में हमें अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए, सो दिस इज सिमिलर टू द स्लोप कॉन्सेप्ट ऑफ 2D. सो 2D ज्योमेट्री में हम जब 2 पॉइंट फॉर्म करते हैं, उसमें हम स्लोप देखते हैं, 2 लाइंस के बीच का स्लोप देखते हैं, विच एक्चुअली गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. तो उसी तरह से यहाँ पे 3D में वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. तो अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 और अदर पॉइंट x2 y2 z2 है, देन द डायरेक्शन रेशियोज आर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. सिंपली आप इनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x y z कोऑर्डिनेट्स को सब्सिक्वेंटली हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. और यहाँ पे अगर मुझे देखना है
इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास ये आ गए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? बेसिकली आप इस डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दीजिए, बेसिकली इस r से इन तीनों को डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दीजिए। एंड व्हाट विल बी r? दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, हमें पता है x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. This is the basic distance formula between 2 points in 3D. So this is how we write the direction ratios, and these are the direction cosines in the case of 2 points. Now let's see a couple of questions which we have. The direction ratios of a line joining the points 340 and 444. तो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज? हमें फिगर आउट करना है। दोनों को सब ट्रैक कर देते हैं। तो 4 minus 3 gives you 1, 4 minus 4 gives you 0, and this gives you 4, 1 0 4. So first option is the correct answer. अच्छा, क्या यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है? Now this can also be the option. क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं रूट 17 से डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल में ये हमारे पास क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को भी हम डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दैट विल बी नोन एज अ डायरेक्शन रेशियो। बट अगर कंक्लूसिव आंसर चाहिए, ठीक है, सिंस दिस इज अ डीसी, तो अगर सिंगल करेक्ट में ऑप्शन पूछा जाता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द डीआर्स। नेक्स्ट लेट्स सी L1 M1 N1 L2 M2 N2, these are the DCs of the lines and the angle between them is pi by 2. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो अब ये जो L1 M1 M1 होता है, ये होता क्या है? दिस इज बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन से हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, एंड हमारे पास जो पहली लाइन है उसकी तरफ ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, दूसरी लाइन है उसकी तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो ये हो जाएगा m2j कैप प्लस n2k कैप। अब n1 कैप डॉट n2 कैप, दिस विल बी इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर दो डायरेक्शन को साइंस हम देख रहे हैं लाइंस के जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू पाई बाय 2, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 plus N1 N2, this will be equal to 0. So this is how we solve such questions. Okay, next let's see last problem. The DCs of a line whose DRs are 2 3 6 are, तो 2 3 6 सबसे पहले तो हम इसका मॉड्यूल्स निकाल लेंगे। बेसिकली वी गेट 2 square plus 3 square plus 6 square. So this becomes 36 plus 9, 36 plus 4 plus 9 gives you root 7. तो root 49 which gives you 7. तो हम बेसिकली 2 3 6 को 7 7 7 से डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट 2 by 7, 3 by 7 एंड 6 by 7. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स मिस हुए हैं, कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली आपको 3D के दिक्कत दे रहे हैं या वेक्टर्स के दिक्कत दे रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बिलो। आई विल ब्रिंग द वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल। सो आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा आपको कोरिलेट करके भी बताया चीज़ों को DCs और DRs के बीच में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।